I am Nyanal Sate, got golden opportunity to introduce our respected Mr. Ram Sir, who is English lecturer at Government Polytechnic College, which is located in Thane. Ram Sir is not only an excellent teacher but also a true guide and mentor for students. He strongly believes in skill building and personal growth, and he also motivates students to improve their communication skill and overall personality. His teaching skill is simple, inspiring, and practical, which helps students to understand the importance of English in both professional and personal life. We are fortunate to have a lecturer like Ram Sir who shapes not just career but character as well. Thank you. Hello. Am I audible? Okay. Next 2 hours will be very boring for you all. Do you agree or do you disagree? First year, right now you are sitting somewhere in darkness and in public, in people's life, whenever you feel that when someone asks you, what exactly do you do? Very proudly we say, I'm an engineering student. Maybe mechanical, maybe computer, right? But once you are done with your diploma, and if you don't get placed somewhere, this question will bother you. तुम्हाला डिप्लोमा कंप्लीट झाल्यानंतर हा प्रश्न विचारला की तू काय करतोयस डिप्लोमा झाल्यानंतर, that time you will feel insulted. And if you don't want to feel insulted, listen to me for next 2 hours. And I promise you, definitely you will take something substantial out of these 2 hours. If you don't get, that will be my defect. You can simply write in feedback form that I wasted 2 hours of my life because I attended the session conducted by Mr. Ram Patil, who simply called himself a lecturer in English. समजलं सर्वांना मला काय सांगायचंय? फक्त मध्ये रिकामा कमेंट करायचा नाही. रिकामा कमेंट केल्यानंतर आजूबाजूचे 2 टाळकी फक्त हसतात आणि आपल्याला खूप मोठं असल्यासारखं वाटतं की वाव, मी काहीतरी मोठं अचीव केलं. वेअरएज ज्या वेळेस इंटरव्ह्यू मध्ये पहिला प्रश्न विचारला जातो, इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ, आपलं पूर्ण फंबल झालेलं असतं. आय होप एव्हरीवन इज कम्फर्टेबल इफ आय यूज मराठी लँग्वेज इन बिटवीन. Is there any student who is not at all comfortable with Marathi? Now the reason why I will be using Marathi language in between, because I want to touch your head as well as heart and the mind. जेव्हा एखादी गोष्ट आपल्या मातृभाषेत सांगितली जाते तेव्हा ती पोहोचते. एखाद्याने आपला इन्सल्ट केला मातृभाषेमध्ये चांगल्या शिव्या देऊन तर तो पोहोचतो आणि मग मारामाऱ्या होतात. Yes or no? Yes. Okay. So today we are here to discuss very important topic. असं कोणी आहे का इथे की ज्याला डिप्लोमा फक्त नावासाठी करायचं आहे, डिग्री फक्त नावासाठी करायची आहे? डू वी हॅव अ कॉर्डलेस माइंड प्लीज? माझा आवाज असाही येऊ शकतो. येतोय असाही आवाज? हॅलो हॅलो, येतोय आवाज सगळ्यांना? I started my teaching career as a professional in the year 2006. I was asked a question in one of the interviews, the first interview in degree college, introduce yourself. And let me tell you very frankly, I was not that much prepared because I didn't have single year experience. When I came to Mumbai, I had a picture in my mind that Mumbai means gang war, Bollywood, local trains, and tremendous crowd. That was the picture which was very negative. So when I was asked to introduce myself, I felt that I should talk facts. So I said, I am born and brought up in a village, Tahsil Bhusawal, district Jalgaon. I graduated in English from my native place itself. Later on, I shifted to Pune to complete my post-graduation. As soon as I was about to continue, the panel member asked me the next question. Mr. Ram, just now you said
that you did your schooling from your native place. Now tell me, which medium did you get educated in? I said, of course, Marathi medium. जिल्हा परिषद मराठी मुलांची शाळा पिंपळगाव खुर्द. That is what I felt that I'm very proud of my mother tongue. The next question was waiting for me, and the next question was, if you have done your schooling in Marathi medium, how will you teach communication skills, presentation and communication techniques, personality development to the students of Mumbai who are from cosmopolitan culture? This was a bouncer for me. That time I realized what exactly I was missing. Not only the fluency, the pronunciation, the sophistication of English, it is because when you teach or groom someone in personality development, first of all, your personality has to be developed. And that's where I started working on the pronunciation, mostly the sophistication of my language. I was very good. Grammatically, I was correct, no doubt at all. But whatever English I spoke, it had full of mother tongue. You know, full of mother tongue? And because of that, the panel member, they were skeptic to select or shortlist me. But a question that was torturing me, that how will you groom the students of cosmopolitan city like Mumbai? It is because you are born and brought up in a Marathi family, schooled in Marathi medium, how would you train them in English? And that was a big question. But later on I convinced them, luckily, that sir, as per my expertise, I think if I am prepared about the topic that I would be teaching my students, and if I have command over the medium of instruction, definitely I would bring some change in the lives of this cosmopolitan city students. Somehow, luckily, the person got convinced, I got blessed. But in the year 2015, the journey started with how will you teach students, because you yourself is from Marathi medium. But in 2015, when I was interviewed by MPSC panel member, Maharashtra Public Service Commission, the question was asked, as per your experience and resume, it appears that you have worked in very elite colleges of Mumbai University, that to degree students. If you are shortlisted in diploma engineering students of Government Polytechnic, the students are from Marathi background, Hindi background, Urdu background. How will you come down to that level? That time my answer was that, sir, I am born and brought up in Marathi family. That too, I got schooled in Marathi medium school. That too, JP school. When I answered in 2015 in front of the MPSC panel member, I was very proud of the same answer, which I was very ashamed of myself in 2006. And that's why you have to listen to me for next 2 hours, and I know that I will definitely bring certain amount of change in your psychology, because you are in first year. Right now you do not know how much precious time you are wasting just by talking to each other, or just shouting, or making some laugh, or just sitting over there in your chair relaxing that yes, the show is going on. It's not like that. So after diploma, what else? And during diploma, what you need to concentrate on. That is what this lecture is all about. I hope everyone is clear about it. Ram Patil from Government Polytechnic Thane. Let me tell you another story of my life. When I postgraduated from Pune University, the network that I created, or luckily it got created, with my teachers, with my friends, with my mentors, that has helped me in every stage of my life. And today I am standing in front of you. This is, I think, second lecture in this auditorium. For the first time I was called last year, I think 2-3 years back. And that was my first exposure to the huge audience. I think 200 or 300 people were sitting over here. And I was simply told that I need to interact with the student of one class. That is hardly 60 people. And I was very confident. For 60 people, मैं तो manage कर लूँगा, कुछ भी बोल दूँगा, लोग पकड़ लेंगे. But when I came over here for the first time, and I could see the huge audience over here, chilled climate, and I was given the mic to speak, I was confused. The heartbeat was like this.
and I was invited to talk on stress management. Can you imagine the situation? मी स्वतः स्ट्रेस्ड होतो आणि मला स्ट्रेस मॅनेजमेंटचं लेक्चर द्यायचं होतं आणि मला वाटलं होतं की मी फक्त 60 मुलांच्या समोर बोलणार आहे आणि इथे आल्यानंतर इथेच आय थिंक दिस इज द प्लेस इथे आल्यानंतर धक 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 सुरू झाली, तोंड कोरडं पडलं. मी असं काहीतरी खेळण्याचा प्रयत्न केला. आय जस्ट ट्राय टू हाईड माय नर्वसनेस अँड द स्ट्रेस, बट लकीली आय डिड द सेम ट्रिक लाईक दिस. Audience, can you feel my heartbeat? And the audience, they were very supportive. They understood by my facial expression कि yes, ये बंदा थोड़ा सा डरा हुआ है और मत डराओ इसको, नहीं तो हार्ट अटैक आएगा, यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा इसको. But later on, once I started, I gained my composure, I gained my confidence, and I delivered it, and almost everybody was satisfied by attending that session. And today you will also be. In fact, today while going home itself, you will start preparing for what I am prepared today. So the topic is what after diploma. But my topic is what is during diploma itself. Yes. मैंने पहले ही सवाल पूछा. आता किती लोक असे आहेत की सर मला फक्त नावाला डिग्री घ्यायची आहे सर, आपल्याकडे बक्कड जमीन आहे सर, बक्कड बंगलो आहे सर, मोठे मोठे 50 तोला माझ्या गळ्यात तुम्हाला आत्ताच दिसत आहे सर, मला फक्त नावाला घ्यायची है सर रणछोड़दास डिग्री. कितने लोग बैठे यहाँ पे ऐसे जिनके पास सोने की चेन है? दिखाओ मन. 1.5 लाख के ऊपर चला गया है. 50 तोला मतलब 50 तोला मतलब कम से कम 1.5 करोड़. तो अगर आपने दिखाया तो शायद आप गायब हो जाओगे शाम तक. So don't show it. My point is, you should not go for रणछोड़दास degree. रणछोड़दास degree का मतलब समझते हो आप लोग? What is my रणछोड़दास degree? The certificate. 3 Idiots movie देखी आप लोगों ने? वो. उसमें जो फुंगसुक वांगडू था, जो छाछड़ की जगह पे गया था उस कॉलेज में, और फुंगसुक वांगडू बिना किसी सर्टिफिकेशन के वापस आता है. उसे कोई फॉर्मल डिग्री नहीं मिलती, डिप्लोमा नहीं मिलता, बट ही केम बैक और वो गायब हो जाता है. फ्लैशबैक में पूरी मूवी है. जो चतुर होता है वो सबसे स्मार्ट, सबसे क्लेवर और सबसे हार्ड वर्किंग बंदा था. वो फुंगसुक वांगडू को ढूंढ रहा था ताकि उसके साथ पेटेंट की एक डील फाइनल करे. एंड अल्टीमेटली when he comes to meet Phunksuk Wangdu, ignorant about Mr. Amir Khan is himself is a Phunksuk Wangdu, the scientist who is having more than 300 patents registered against his name. जब उसे पता चलता है तब हम लोगों को सबको जो रिलैक्सेशन मिला ना कि नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड क्यों जरूरी है rather than the certificate, तब हमें पता चलता है. और उसी के लिए आज का सेशन है. I hope everyone is with me except the 2 boys, those who are discussing something very important of their life. I think they have started discussing their career itself. Career is a Google map. तुम लोग कितने लोग ऐसे कि Google मैप का इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए? हाथ ऊपर करो. या किया है अब तक? बहुत बार Google मैप हमें सीधे पहुंचा देता है. जीपीएस अगर सही है तो वो बराबर पहुंचा देता है, राइट? लेकिन गूगल मैप जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हमें 2 कलर दिखाई देते हैं. कौन से? रेड एंड येलो. येलो एंड रेड का मतलब तुम्हें समझाऊंगा, then you will realize why exactly this analogy has been taken into consideration when I say that your career is a Google map. Sometimes we feel that our career is a ladder. Diploma, then degree, then post graduation, then research, then get placed somewhere. We feel that these are the steps in our career, but it's not like that. It's not that easy. Google map means it's a zigzag line. Sometimes the GPS gives you the correct direction, but even if the direction is correct, it is filled with traffic. For example, in India, more than 15 lakh engineers graduate every year. कितने? 15 लाख जर इंजिनियर तयार होत आहेत प्रत्येक वर्षी, तर आपली कॉम्पिटिशन कोणासोबत आहे? त्या 15 लाख सोबत आहे. आणि त्या 15 लाख पैकी, सॉरी टू से दिस,
फक्त 7 ते 8% लोक एम्प्लॉयबल असतात. ओनली 7 to 8% ऑफ इंजिनियर्स आर एम्प्लॉयबल. एम्प्लॉयबल म्हणजे काय, की जे नोकरी देण्याच्या लायकीचे असतात. आपल्या प्युअर मराठीत सांगायचं तर त्यांचीच फक्त लायकी असते की त्यांना जॉब मिळेल. मग ह्या थ्रू आउट 3 years ऑफ डिप्लोमा तुम्हाला आपली लायकी बनवायची आहे. मग ती लायकी बनवण्यासाठी काय करावं लागेल ते सगळं मी सांगणार आहे तुम्हाला. इफ यू हॅव गॉट युअर पेन अँड पेन्सिल ऑर मे बी युअर मोबाईल फोन अँड इफ देयर इज अ नोटपॅड इन युअर मोबाईल फोन, यू कॅन सिम्पली राईट डाऊन. देयर आर 4 to 5 things. If you simply go with the sincerity and apply those in your life of these 3 years, you would be employable. You would be confident enough to start your own enterprise, right? So Google is a career is a Google map. I started with military school. You know military school, very disciplined. I could not survive there for 6 months. After 6 months, I changed it. I got shortlisted in a college of Mumbai. Again, I could not fit in. I changed it after 4 years. Later, I shifted to another very elite college of Mumbai University. I could survive there only for 1 year. Then I shifted to the topmost engineering colleges of Maharashtra, which has the highest fees even today. And today also it is ranked number 1. And I worked over there for 5 years. But in between, in 2013, I appeared for MPSC examination, Maharashtra Public Service Commission, direct recruitment for the post of lecturer in English. In 2013 itself, I cleared it. The interview got well. The written examination was very nice. I think I scored the maximum marks in written and in interview. Because of 1 or 2 points, I was the second ranker in Maharashtra. 2015, I got placed. Military school, engineering college, next engineering college, another the topmost engineering college, then again back to the Public Service Commission, and right now I am working. Today I am placed in Government Polytechnic Thane. Initially I was placed in Buldana district, Khamgaon. Throughout these 6 to 7 years of this public service, I again tried central government. Unfortunately, because I scored 20 less marks, I could not go through. I failed or I could not qualify in written examination. Career is a Google map. I could not qualify means they were better people. And why they were better people? Because there were more people. The way we have yellow line and red line throughout the journey, it suggests that there is a traffic and you cannot go further even if you have the best car available. But there is no space. Yesterday itself, I think Pune-Mumbai corridor, for 22 hours, the people were helplessly waiting for the traffic to be cleared. And the same kind of traffic is there for you also. 15 lakh engineers are graduating every year in India itself. And if you take the figure in abroad, more than 50 lakh engineers are being produced, and our greatest competitor is China. China has more than 15 lakh engineers, and we all know that more than 200 people are sitting over here. Majority of you are carrying the mobile phone manufactured directly or indirectly by China engineers. Yes or no? कितने लोगों के पास चाइना का मॉडल है? जरा हाथ ऊपर करो. जो लोग सोए हैं उनको जगाओ बाहर से ऐसी कोनी लगा के. सब लोगों के पास है. अभी हमें कंपटीशन का अंदाजा आ रहा है. Yes. Can you read this? Engineering is not my choice and engineering is my choice. अभी तुम लोग आंखें बंद करो सब लोग. Close your eyes, all of you. जो लोग ऑलरेडी सोए हैं वो तो सोए ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी मैं खुद बोल रहा हूँ कि जस्ट क्लोज योर आईज, ऑल ऑफ यू. कोई मेरी तरफ नहीं देखेगा. डोंट वरी, तुम्हारी जेबें सेफ रहेगी. अभी तुम में से कितने लोग ऐसे हैं कि मम्मी डैडी ने बोला इसलिए मैं डिप्लोमा करने आया हूँ? हाथ ऊपर करो और ईमानदारी से हाथ ऊपर करो. मैं कोई पिक्चर या फोटो नहीं निकालने वाला हूँ. गुड. अभी आंखें खोलो, हाथ ऊपर ही रहने दो. हाँ,
देखो हार्डली 2 या 4 बंदे हैं जो कि सच बोल रहे हैं, बाकी सब मेरे जैसे। Am I correct or am I not wrong? When you feel, कोई आंसर करेगा कि सर it was my choice sir, I wanted to do my diploma in computer engineering and I got selected, I am very happy। चलो हाथ ऊपर करो, 1 2 3 4 5 6, हाँ सिर्फ लड़कियां हाथ ऊपर करें, ओके वेरी गुड। अभी तुम में से सिर्फ एक मुझे बंदा या बंदी चाहिए कि वो बताए कि सर why I liked computer engineering and why I shortlisted it। चलो I'll carry a mic with you। कौन बोलेगा, बोलो, हाथ ऊपर करो कि मैं बोलता हूं सर। Language barrier is not there, I am using Marathi, Hindi and English, all languages are being spoken by me, so if you are comfortable in Marathi language that is absolutely fine, but I want you to come up with the answer। Anyone? अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा। मराठीत बोललात तरी चालेल, कोई नहीं बोलेगा। देखो आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ने भी आपको ये बोला होगा कि आपके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल्स है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बिकॉज एवरी कंपनी दैट यू विल गो एंड वर्क फॉर हैज अ डिफरेंट वर्क कल्चर। The only thing your basics are really good, you need to learn any company you join, you need to learn the work culture। मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस में हो, जो भी हो, आप जब प्लेस हो जाते हो वहां का कल्चर आपको सीखना पड़ता है। इट इज नॉट taught in your diploma or degree engineering, no, they prepare you with basics। So when you go over there, you need to listen, you need to interact, you need to talk, and before you get placed you need to complete your aptitude test and then your personal interview and group discussion। In all the cases your communication skill is very important। And when I ask you a question, why did you select computer engineering or maybe IT or maybe mechanical, when you cannot speak in front of others means you need to work on, you need to introspect। You know introspect? I'll tell you something about SWOT analysis also, SWOT। I think your English teacher, communication teacher would definitely teach you this SWOT analysis। In communication skill they might have, but you have to do that SWOT analysis which is going to help you over here। If engineering is not your choice and if engineering is your choice, how it affects, the next slide will tell you। By the time I take 2 sip of this bottle, I want you to read the next slide, all of you। मन में पढ़ना है और मैं किसी को भी सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। पढ़ा आपने? अगर इंजीनियरिंग आपकी चॉइस है तो जो मिडिल कॉलम है वो आपके लिए है। जैसे ही मैंने पूछा कि कितने लोगों ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया है, मोस्ट ऑफ यू रेज योर हैंड कि सर माय चॉइस लिया है, एंड इट्स अ गुड साइन। इट्स अ गुड साइन कि तुमने खुद लिया है, क्योंकि जब मैंने शादी की 4 या 5 लड़कियों को मैं मिला, उसमें से 2-3 ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, 2-3 के साथ मेरी बात नहीं बनी, जिसके साथ बात बनी उसकी और मेरी कुंडली जुड़ नहीं रही थी। तो डैडी ने बोला और माँ ने भी बोला कि नहीं भाई कुंडली मॅच नहीं कर रही है, तुमचे गुण जुळत नाही आहे, लग्न टिकणार नाही। मी त्यांना सांगितलं दिस इज माय चॉईस, जे झालं ते ब्लेम माझ्यावर येणार। तुम्ही इंजिनिअरिंगला मेकॅनिकल घेतलंय, कम्प्युटर घेतलंय, आयटी घेतलंय, तर तुमची चॉईस आहे, तर त्याची चांगली आणि वाईट फळं ही तुमची जबाबदारी आहे, लक्षात ठेवा। आणि ज्या लोकांनी आई वडिलांचं सांगून घेतलंय त्यांच्यासाठी एक एक्सक्यूज आहे, नापास झाला, पास किती लागल्या, तुम्ही सांगितलं होतं जा म्हणून मी गेलो, आता तुम्ही बोलायचं नाही आणि आई वडील जास्त बोलणार नाही, असं नाहीये। आम्ही फटके देणार, बाप जर माझ्यासारखा असेल तर फटके पडतील, आणि मोस्टली मुलगा जर असेल तर हे नाही भेटणार, हे भेटेल, त्याच्याशिवाय तुम्हाला कळत नाही। माय पॉइंट इज, जर तुमची चॉईस असेल मेकॅनिकल, सिव्हिल, कम्प्युटर, तर तुमचं मोटिवेशन जे असणार आहे ना
तो जबरदस्त ड्राईव्ह असणार आहे. तुमचा जो रेजिलियन्स असणार आहे, तर रेजिलियन्स काय तुम्हाला सांगतो. कितने लोगों को केटी लगी है फर्स्ट सेमेस्टर में? हाथ ऊपर करो. डोंट फील अशेम ऑफ इट. यस यस, वेरी नाइस. हैंड्स डाउन. जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मुझे पता है आपको लगी है, लेकिन आप बता नहीं रहे. मैथमेटिक्स ऐसी चीज है, सबकी वाट लगती है. जितने लोग मैथमेटिक्स में फेल हो गए, जरा आवाज करो एक बार. 1 2 3 स्टार्ट. पॉइंट ये है, मैथमेटिक्स के कारण ही मैं आज यहां पे खड़ा हूं. When I saw the textbook 11th science mathematics and physics, it was so thick. By looking at the thickness itself, I got defeated. मैंने बोला ये अपने बस का नहीं है. अभी अगर इंजीनियरिंग करनी है और मैथमेटिक्स नहीं आता ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए. Because the definition of engineering is mathematics plus physics. The definition of engineering is mathematics plus physics. और मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक दूसरे के भाई है. फिजिक्स में थ्योरी कम और आपके मैथमेटिक्स के सम ज्यादा होते हैं. देखा होगा आप लोगों ने. कितने लोगों को साइंस में केटी लगी है? फिजिक्स केमिस्ट्री मिलकर हाथ ऊपर करो. तो थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा आपके लिए. 1 2 3 4. वेरी नाइस. ठीक है. पॉइंट ये है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स आप इसको निग्लेक्ट करोगे, अच्छे इंजीनियर नहीं बनोगे. मोस्टली मैकेनिकल वाले जितने भी हैं, जरा हाथ ऊपर करो. मैकेनिकल, यस. आपके लिए फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स अगर नहीं है, आपको बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे. आई एम नॉट हियर टू ग्लोरीफाई एनी सब्जेक्ट. आई एम हियर टू प्रूव माय पॉइंट दैट इफ इंजीनियरिंग इज योर चॉइस, without mathematics and without physics, your engineering would be incomplete. And then the resilience, if you have got 2 or 3 KTs, but if engineering is your choice, you will face it with happiness. आज अगर बीवी ने झगड़ा किया, मैं घर पे माँ को या डैड को नहीं बोल सकता कि ये झगड़ा कर रही है. नो, दैट वाज माय चॉइस. सेम केस, मैथ्स में अगर आपका केटी लग गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका केटी लग गया है, इट वाज योर चॉइस. सो यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर इट. और एक बात, अगर सेकंड सेमेस्टर में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की केटीज क्लियर नहीं हुई, आपके इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के चांसेस और कम हो जाएंगे. मार्क माय वर्ड्स, इट्स नॉट इजी to appear for more than 6 papers in one semester. And that's why if engineering is your choice, well and good. You have to take the responsibility. Be resilient. Next is deep and conceptual learning. It is because I like something. When I started after my 12th, listen to me very carefully. Because of one teacher, I got inspired to opt for English. Because of my fear of mathematics, I left science and I switched to arts. In arts itself, because of one professor, I was motivated to go for English. After doing my English post-graduation and graduation, I realized that my likes and dislikes does not lie in English literature. It lies in English language. It lies in linguistics and stylistics. It lies in pragmatics. Now these are the terms that are related to English language. English language कैसे बोली जाती है, उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका स्पेलिंग कैसे तैयार हुआ, एटिमोलॉजी क्या है, इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा. एंड देन आई रियलाइज दैट दिस इज व्हाट इज मेंट फॉर मी. तो आपको भी वही करना पड़ेगा. शुरू में हमें लगता है कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लमेटिक है, फिजिक्स प्रॉब्लमेटिक है, बट वंस यू रियलाइज इट, you go with the flow. Without any KT, you will clear it, and then you will also go for the placement. Once you like it,
you will go for the deeper search. Even today also I am learning, I am doing my research in the same area, pragmatics. I am also a student of Mumbai University. I am doing my PhD research, and after I think 6 or 7 months there will be Dr. Ram Patil in front of you. Maybe अगर आप लोगों ने second year या third year में फिर से मुझे बुलाया, तो my introduction would be Dr. Ram Patil. It shows that because I liked it, the deep and conceptual understanding is going on. आप में भी वही है. जिन लोगों ने अपनी चॉइस का लिया है, they will definitely go for it. अगला पॉइंट है success defined by mastery. If it is your choice, today, as I said, I am standing in front of you only because I like the subject English. Only because I worked on my sophistication of English. Today I was invited only because I have done something in the area. Today I have got more than 8,000 followers on my YouTube channel. It is because I have given something substantial. Today one video of mine gets more than 16,000 of views only because there is something substantial related to examination. That's why the people are crazy about that. Defined by mastery. Because you like it. तुम्हाला पण टेस्ट करायचंय. लक्षात ठेवा मी काय सांगतोय. सक्सेस डज नॉट कम इझिली. तुम्हाला जे काही युट्यूबच्या रील्स वर दिसतंय, काहीतरी कोणीतरी चांगले कपडे घालून मिरवतंय, दॅट इज रिअल लाईफ. रिअल लाईफ इज समथिंग डिफरंट. रिअल लाईफ मध्ये तुमच्या मार्कशीटवर किती मार्क्स आहेत, किती मोठा सीजीपीए आहे, 95% आहेत. मार्कशीट तुम्ही असं कपाळाला चिपकून फिरणार का? 95% आहे सर. Your marks are only eligibility. Your degree certificate, diploma certificate is just an eligibility. Your career is decided by what skills you have. And that's why whatever stream you have selected, उसमें जितने भी skills required है, अपने टीचर को छोड़ना मत. टीचर ने बोला राम पाटिल कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, नहीं प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हें बनना है. उनके पास तैयारी करके जाओ. जितने भी स्किल्स है मैकेनिकल के बंदे में चाहिए, वो अर्न किए बिना डिप्लोमा कॉलेज कंप्लीट होना ही नहीं चाहिए. दैट इज व्हाट यू नीड टू स्ट्राइव फॉर, डिफाइंड बाय मास्टरी. ये एक्टिविटी हो गया. एक बार फिर से आंखें बंद करो और अगले 5 साल में मैं कुछ प्रकार का जॉब करना चाहता हूँ, कौन सा बिजनेस करना चाहता हूँ, राम पाटिल को जो मुझे अभी पका रहा है मैं उसके सामने लेक्चर देना चाहता हूँ. जस्ट इमेजिन करो. तो क्लोज योर आईज, ऑल ऑफ यू. इमेजिन in next 5 years or maybe 10 years where exactly you want to see yourself. Maybe a YouTuber, maybe a blogger, maybe a best engineer available in your field, maybe a professor. Can anyone share? Open your eyes. Can anyone share what exactly you want to see yourself? Where? मराठीत बोललं तरी चालेल. Boys, mostly I expect answers from boys. Ladies first कर करके आज हमारी नौबत ये आई है कि हम लोगों को बर्तन मांजने पड़ेंगे. इतनी आगे चली गई है और हम लोग बस हंसने हंसाने में पड़े हुए. स्मार्ट जोक मारने का, 2-4 अपने पंटर को हंसाने का, and then we go ahead. Don't do that. You are wasting your time, you are wasting your energy. Channelize it. चलो कौन बोलेगा कि सर 5 साल में 10 साल में मुझे लगता है कि मैं ये करूं. Any? अभी तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे पता है? अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो ये लोग हंसेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी 2 केटी लगी है, मेरी 3 कटी लगी हुई है, मेरे को सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं. डोंट वरी अबाउट इट. चलो नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन अपने आप को बता दो कि मुझे ये करना है. स्टार्ट वर्किंग फॉर इट, और जब रिजल्ट आएगा ना तभी सबको बताना कि मैं बन गया. तब तक शांति बनाए रखो. दैट इज ऑल्सो अनदर वे. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कमिट करके रखते हैं, माँ को बोल के रखते हैं, बाप को बोल सकते हैं, गर्लफ्रेंड को बोल के रखते हैं कि मैं ये करूंगा, तो एक प्रेशर आ जाता है. मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है कि मैं ये करूंगा या मैं ये करूंगी,
तो प्रेशर आता है और उस प्रेशर से यू गेट मोटिवेटेड टू कंप्लीट इट, क्योंकि आपने कमिट करा है, खुद को कमिट करा है. द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, यू कमिटेड टू देम कि मैं ये करूंगा, 5 साल में देखो क्या होगा, एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू विजुअलाइज योरसेल्फ बाय क्लोजिंग योर आईज, यू गेट द पिक्चर. आणि जर का तुम्ही आता काहीच ठरवलेलं नाहीये, फक्त टाइमपास करायचं ठरवलेलं आहे, तुमची लाईफ कटीपतंग सारखी असणार आहे. यु नो कटीपतंग, जशी हवा येणार तशी उडत जाणार आणि कुठेतरी पडणार. दॅट्स नॉट वी आर हिअर फॉर. यस, ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मुझे इसके बारे में बोलना है. इंजीनियरिंग वड़ा पाव, इंजीनियर्स टी स्टॉल, ऐसे कुछ देखे होंगे आपने रील्स. यस, एंड दीज पीपल ग्लोरीफाइड. डॉली चाय वाला तो दुबई जा रहा है. कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर वो कैरी मिनाटी देखा आपने, कैरी मिनाटी सब करोड़ों कमा रहा है सर यूट्यूबर बन के. आई अग्री. कितने कैरी मिनाटी बने अब तक, कितने कैरी मिनाटी बने? हजारों करोड़ों यूट्यूबर्स हैं वहां पर. आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, बट दैट्स नॉट माई डेली ब्रेड एंड बटर. If you are putting something on YouTube because you are an expert over there and you get the fan following, that is absolutely fine. You earn in dollars by sitting in India itself. Accepted. But how many of you get successful? Whereas 1.23 यानी 1,23,750 लोग प्लेस हो रहे हैं हर साल. एम्प्लॉयबल उतने ही लोग हो रहे हैं. उनमें अगर आपको आना है तो आपको पास कुछ तो होना जरूरी है. और क्या होना जरूरी है वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा. बट मेक श्योर डोंट गेट कैरीड बिकॉज सम डॉली चाय वाला इज सक्सेसफुल. आई विल सिंपली राइट वन बोर्ड, मैकेनिकल इंजीनियर चाय वाला. डोंट डू दैट. डोंट फॉल प्रे टू इट. रिसेंटली 3 girls they committed suicide. You know that? Because they were addicted to one online game. Because of that pressure and addiction, they simply jumped off and died. Directly or indirectly, हम लोगों में भी वो addiction है. एक बार मोबाइल ले लिया, स्क्रोलिंग करते रहो. एक बार मोबाइल ले लिया, स्क्रोलिंग करते रहो. And 90% of the stuff we forget. Right now also I am talking something, but few of you are simply side talking. It shows that how sincere and how serious we are about our own career. When we are sitting here and investing 2 hours, at least we should listen with clear mind. Now what is this clear mind? मला सगळं माहिती आहे, हे सगळं YouTubeवर अवेलेबल आहे, मी 2 रील्स मध्ये हे सगळं समजेल, मला 2 तास बघण्याची गरज नाही आहे, माझ्या जो बाजूला बसलाय मला त्याला काहीतरी सांगून दे. Because of this baggage, you don't listen to what the person is saying. And the person is saying by applying 20 years of his teaching experience. So whatever you are getting out of my 20 years, you are getting it within 2 hours. And that's why it is our moral responsibility to sit at least comfortable and listen positively that today I am here to gain something because I am investing 2 hours and I will not get back these 2 hours of my life even if I am an ordinary teacher or Mr. Ambani. Got it? नेक्स्ट. तो कंपनीज क्या करती है? कंपनीज डोंट हायर डिग्रीज, दे हायर स्किल्स एंड एटीट्यूड. तुम में से लोग 60%, 70% लेकर आएंगे, 80% लेकर आएंगे, 90% लेकर आएंगे, नो डाउट एट ऑल. ऐसी कौन सी कंपनी है कि वो सिर्फ आपके परसेंटेज के बेसिस पे आपको प्लेस कर रही है, बिना आपका इंटरव्यू लिए, बिना आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिए? एक भी नहीं. यू कैन आस्क योर टीपीओ. एक भी कंपनी नहीं है ऐसी. तो तुम्हें क्या है, तुम्हारा डिप्लोमा या डिग्री, इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी एंड यू नीड टू बी एलिजिबल. लक्षात ठेवा, काही मल्टीनॅशनल कंपनीज अशा आहेत की ज्या खूप चांगलं पेमेंट देतात डिग्री आणि डिप्लोमाला, पण त्यांची अट असते नो केटी अट ऑल अँड थ्रू आउट सेमिस्टर्स 60%, मिनिमम 60%. दिस इज एलिजिबिलिटी. They want the top cream. They want the promising youth to work for them.
And if you do not have that promising attitude, why would they waste their time and money in training you and hiring you? It is as simple as that. मला जर का घरामध्ये एखादा स्वयंपाक करण्यासाठी ठेवायचा असेल स्वयंपाकी, तर मी त्याला पहिला प्रश्न विचारतो की तुला काय येतंय? तुला इंडियन थाली बनवता येते का? महाराष्ट्रीयन थाली बनवता येते का? तुला नॉनव्हेज बनवता येते का? तुला व्हेज बनवता येते? वी आस्क these questions. By these questions itself you should understand that my diploma and degree certificate is an eligibility. But my selection, my progress in my career depends over my skills and attitude. अभी स्किल्स कौन से लगेंगे और एटीट्यूड क्या है, दोनों को बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में. एंड प्लीज पे अटेंशन टू दिस स्लाइड बिकॉज दिस इज द गेम चेंजर. कोर स्किल बकेट्स. नंबर 1, टेक्निकल स्किल. इट इज प्री रिक्विजिट. अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और आपको मैंने बोला कि सॉन्ग और टॉम में क्या डिफरेंस है और आपको पता नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने आपको पूछा कि भाई सर्किट और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है और आपको पता नहीं है, यू आर नॉट गुड इन कोर स्किल, टेक्निकल स्किल, विच इज प्री रिक्विजिट. डू यू अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ प्री रिक्विजिट? प्री रिक्विजिट म्हणजे काय? देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज. ते पाहिजेच. इट शुड बी. आणि ते असतंच. 15 लाखांपैकी फक्त 1,23,000च का प्लेस होत आहेत? हा आकडा फ्लक्च्युएट होतो. हा लेटेस्ट आकडा आहे. हा फ्लक्च्युएट कमी जास्त होऊ शकतो. पॉइंट इज आपल्याकडे जॉब मागणारे खूप आहेत आणि देणारे फक्त थोडेच आहेत. टाटा, बिर्ला, अंबानी, अदानी सोडले की आपल्याला दुसरं नाव आठवते का? नाही आठवत. याचा अर्थ काय? मागणारे खूप आहे, देणारे खूप कमी आहे. बाय डिफॉल्ट, इवन इफ यू आर टॅलेंटेड, इवन इफ यू आर हॅव्हिंग स्किल्स, इवन इफ यू हॅव प्रॉपर ॲटिट्यूड, चान्सेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड फॉर जॉब आर लेस. आणि हे आपल्या मराठी पोरांनी, हिंदी पोरांनी, उर्दू पोरांनी हे शिकणं गरजेचं आहे की पुष्कळसे लोक आपल्याला युट्यूबवर पण सांगतील, अरे तुला टेक्निकल नॉलेज आहे, तुझं कम्युनिकेशन स्किल चांगलं आहे, तुझी पर्सनॅलिटी चांगली आहे, तुझा आउटलुक चांगला आहे, तुला नक्कीच सिलेक्शन होणार. परंतु तुमच्यासारखे खूप आहे आणि जागा खूप कमी आहे आणि तिथे कॉम्पिटिशन सुरू होते. आता तुमचे जे क्लासमेट आहेत ना, जे बाजूला बसून तुमच्यासोबत जोक शेअर करतायत, ज्या दिवशी चांगली मल्टीनॅशनल कंपनी इथे येईल आणि तुम्ही दोघं एलिजिबल असाल, त्यावेळेस तुम्ही कॉम्पिटिटर असाल. आणि त्यावेळेस जर का मित्राचं सिलेक्शन झालं आणि बेस्ट पॅकेज मिळालं ना 10 लाखाचं, देन यू सी हाऊ इट गोज डाऊन द लाईन. मग आपली मैत्री वगैरे साईडला राहणार आहे तिथे. अँड देन यू रिअलाइज की आय सिम्पली किल्ड माय टाइम. आय सिम्पली किल्ड माय. आणि लक्षात ठेवा, बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी जर का 1 वर्ष लेट भेटली किंवा 2 वर्ष लेट भेटली, तर फक्त 2 वर्ष जात नाही आयुष्याची. तुमच्या आयुष्याच्या सर्व गोष्टी 2 वर्ष लेट होणार. सर्व. बेस्ट कार आफ्टर 2 years. बेस्ट शादी आफ्टर 2 years. बेस्ट बंगलो आफ्टर 2 years. Anything best that you feel that you deserve, because you are sluggish, because you are lazy, you did not pay attention at that time, you lost 2 years. आणि इकॉनॉमिकल लॉस तर तुमचा असणारच आहे. And that's why what you need to do is please concentrate on your technical skill. तुम्ही इंग्रजीमध्ये फार इंग्रजी बोललंच पाहिजे याची गरज नाहीये. You are not going to be a trainer like me. If you want to be a trainer, of course you need to have that sophistication and level of English higher. But if you want to work in an industry and if you want to have your own business, your own enterprise, you want to be an entrepreneur, then you need to work on your technical skill because it is prerequisite. I hope everyone is with me and nobody is taking a good nap. And it's good that the lecture is designed before lunch, because post lunch I would be talking to the dead zombies. The next point is communication. Communication म्हणजे संवाद. संवाद खूप गरजेचा आहे. संवादामध्ये 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. मोस्टली मराठी मीडियमच्या विद्यार्थ्यांना हा त्रास होतो. टेक्निकली यू आर व्हेरी साउंड. You have got good knowledge. You have developed good skills. But ultimately, when it comes to group discussion, when it comes to debate, when it comes to face your personal interview, we Marathi medium students, they have the problem. आणि का? एक चांगला विद्यार्थी
फक्त त्याला हॅलो. एक चांगला विद्यार्थी जो मराठी मीडियमचा आहे, त्याच्याकडे टेक्निकली खूप चांगलं नॉलेज आहे, चांगलं स्किल डेव्हलप केलं आहे, काम करण्याची पण खूप चांगली ॲटिट्यूड आहे, फक्त इंटरव्ह्यू मध्ये स्वतःची इंट्रोडक्शनही करू शकला नाही, त्यामुळे पण रिजेक्ट झालेले विद्यार्थी मी बघितलेले आहेत. And to improve your communication skill, it's a continuous process. Mark my words. एका दिवसामध्ये तुम्ही इंग्रजी फाडफाड बोलू शकणार नाही. आणि इंग्रजी बोलता येणं आणि कम्युनिकेशन करता येणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. लक्षात घ्या. This is something very important. All of you need to pay attention to. If you know English, it does not mean that you are a good communicator. No. Good communicator is one who knows what to speak, what not to speak, and how to speak. As per the situation, as per the person, as per the timing, if you know these three things when you are talking, you are a good communicator. For example, right now I am talking in front of you, but hardly few people are paying attention to me very sincerely. It is because I am failing to reach each and every brain that is over here. The point is, and as a presenter, I could feel that yes, 2-3 people are side talking. There are some people, they are taking good nap. There are some people, they are flipping through their mobile phone. That means, as a presenter, as a communicator, I am failing. And that's why communication is not easy. But at least, you should know, you should be able to introduce yourself. And even if you are broken in your English, absolutely fine, but at least you should be presentable. And that's why you need to work on your communication also. देखो, बात करना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है. I'll tell you a story. जो मेरी अभी बीवी है, वो मेरे साथ शादी करने के लिए ना करी थी पहले. वो तो बोल रही थी कि मुझे मिलना भी नहीं है. जब उसकी माँ ने बोला और डैडी ने बोला कि नहीं, अभी उनको इनवाइट किया है तो एक बार बात कर ले, दैट्स इट. उसके बाद ना बोल देना, बिकॉज रिलेशंस होते हैं कि भाई इनवाइट किया है और बाद में बोला कि नहीं मत आओ, हमारी बेटी नहीं बोल रही आपसे शादी करने के लिए. इनफैक्ट शी डिड नॉट वांट टू मैरी अ टीचर. दैट वाज हर प्रॉब्लम, क्योंकि टीचर काफी पकाऊ होते हैं. ये उसका इंप्रेशन था. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वी टीचर्स आर पकाऊ? गुड. At least because your teachers are sitting over here, you are saying no. Accepted. Teachers are not. Teachers are not. They have a hell lot of work to do, and that's why sometimes in order to just complete our syllabus, we hurriedly pass through. Fine? Get back. जब वो तैयार नहीं थी, बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, when her parents convinced her, she was ready to talk to me. उसने सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए मेरे साथ बात करी और शादी के लिए हाँ कर दिया. अभी आप बोलोगे मैंने क्या किया सर? कम्युनिकेशन. बॉयज, ये आगे चीज आपको काम आएगी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी. शादी से पहले कम्युनिकेशन जितना काम आता है ना, उससे ज्यादा शादी के बाद आता है. हम लोगों की लाइफ इजी नहीं है. एंड फॉर बॉयज, मेन, नथिंग इज फ्री. डू यू अग्री? यू शुड, बिकॉज यू आर इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी. यहां से बाहर जाओगे ना, रिक्शा वाला बोलेगा भाई कैश है या फोन पे करेगा. नहीं जा सकते आप. दिस इज व्हाट इज. तो जैसे ही मैं गया, उसके साथ बात करी, मैं बोला दो आई एम अ लेक्चरर, आई एम नॉट अ पकाऊ पर्सन. अभी इससे तो वो थोड़े में कन्विंस होने वाली है. कोई भी बंदा बोलता है कि नहीं यार ऐसे कैसे. आई आस्क्ड हर सिंपल क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस. आपके 10वीं में मार्क्स कितने थे? 60 प्लस.
12वीं में कितने थे? 60 प्लस। ग्रेजुएशन में 60 प्लस। मैंने बोला पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बोला नहीं बहुत हो गया। Then she asked me the same question. I said, throughout my 10th, 12th, graduation, post graduation, I am the topper of college. बस इतना ही बोल दिया मैंने। And she agreed to marry me. Did you understand communication? कम्युनिकेशन समझ में आया आपको? अगर मैं ये नहीं कहता तो शायद आज कुआरा रहता और अच्छा रहता। आगे की कहानी सुनो। Why communication is very important? After marriage, there is one very important point of communication, that is listening. Either you listen or you act listening after marriage. ये दूसरा वाला काफी इंपॉर्टेंट है, एक्ट लिसनिंग। आज तक 19 इयर्स चल रहे हैं, शादी अभी भी सक्सेसफुल है, अभी भी चाय पानी खाना वक्त पे मिलता है। ओनली वन कम्युनिकेशन स्किल दैट आई अप्लाई एट होम, दैट इज लिसन और एक्ट लिसनिंग, और आज भी वही चल रहा है। ये क्लिप किसी को वायरल करना नहीं है। इफ इट रीचेस टू माई स्पाउस, नेक्स्ट टाइम आई विल से आई एम अ डिवोर्सी, क्योंकि वो टीचर है, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूं। और इसका फायदा एक है, कोई किसी की नहीं सुनता। और ऊपर से मेरा जो बेटा है उसको भी मैथ्स नहीं आती, बाय द वे, जो लोग मैथ्स में फेल हो चुके हैं, तो उसने बायो लिया है और बायोलॉजी के बहुत सारी चीजें वो मुझे बताता रहता है और मुझे एज ए गिनी पिग एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है। और इतना चैटर बॉक्स है, मुझे नेक पेन हो गया है। एक साइड में उसकी माँ बोलती है, दूसरी साइड में वो बोलता है, और मैं ऐसे घूमता रहता हूँ और मेरी कोई बात नहीं सुनता। और इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ कोई साइड टॉक नहीं करेगा, सिर्फ मैं बोलेगा। रीजन, आई एम कॉम्पेंसेटिंग इट। एट होम I don't get chance. That's not a topic. Communication समझ में आया आपको? आपके पास जो नॉलेज है, आप जो कर सकते हो, वो आपको मिनिमम शब्दों में पैनल मेंबर को कन्विंस करना पड़ेगा। Do you understand that? In MPSC, the panel member asked me one question. Have you worked in language lab? Do you English language lab? आप गए होंगे कभी? Have you worked in language lab? Is it worth for students? And how much it costs? How it functions? मैंने हर सवाल का जवाब दिया। रीजन, मैंने जो प्रीवियस कॉलेज मैंने बताया, जो टॉप मोस्ट कॉलेज जिसमें मैंने काम किया 5 साल, वहां पे कुछ सीनियर फैकल्टी थी, मैं जूनियर था, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज लैब जो एस्टेब्लिश करनी है वो राम तू करेगा। एंड बीइंग अ जूनियर मुझे वो सुनना पड़ा, एंड आई डिड दैट। वायरिंग कैसे होता है, लैन कैसा होता है, सॉफ्टवेयर अपलोडिंग कैसी होती है, सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग कैसे होता है, कैसे असाइनमेंट देनी होती है, कैसे प्रोनाउंसिएशन की असाइनमेंट सुननी होती है, एवरीथिंग आई डिड। जब वहां की जो कमिटी थी, उन्होंने जब सवाल पूछे तो आई कुड आंसर, and the same questions were asked in MPSC interview also, and I could answer that. आपका जो टेक्निकल स्किल है और कम्युनिकेशन स्किल है, they go hand in hand. You convey your technical knowledge through communication. उसके बाद वाला है learning ability. कितने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है? हैंड्स ऑन। AI कितने लोगों को पता है? बस इतने ही लोगों को पता है। चैट जीपीटी सबको पता है। अच्छा, उन लोगों को जाने दिया और आपको नहीं जाने दिया, इसलिए प्रॉब्लम चल रही है क्या? डोंट वरी, डोंट वरी। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनके लिए 5 कोर्स का मेल है। जो बाहर चले गए उनके लिए नाश्ता भी नहीं है। पता है आपको? ये मुझे भी अभी पता चला।
learning ability. Listen. टाइम नहीं ना हुआ अभी तक, 1 बजा, 2 बजे तक अपना सेशन। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं 1 बजे खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। Okay. Learning ability is nothing but you need to understand this. The problem is whatever you learn throughout your diploma or throughout your degree, you need to understand that it is just basic. It is just basic. After every 1 month, 2 months, the technology changes. New software comes in. New machines, sophisticated machines are coming up. And ultimately, if you do not have the learning ability, there wouldn't be anyone to make you wake up. This is a wake up call for you all. कारपोरेट में इतना गंदा काम चल रहा है अभी कि अगर आपकी उम्र 40 प्लस हो गई तो आपको वो निकालने की सोचते हैं, क्योंकि एक तो आपकी सैलरी तब तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दूसरी बात आपको रिप्लेस करने के लिए यंग लोग काफी कम पैसों में आने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तीसरी बात आप अगर 40 प्लस हो जाते हो तो आपका लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग एटीट्यूड खत्म हो जाता है। इसको निगेट करने के लिए बहुत सारी कंपनी भेड़ बकरियों की तरह डिप्लोमा, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर हो, आईटी हो, इलेक्ट्रिकल हो, चलो सब लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाएंगे। ये हो रहा है। आपको लर्निंग एबिलिटी आपकी थ्रू आउट योर करियर बरकरार रखनी पड़ेगी। यू कैन नॉट रिलैक्स। अगर आप 2 घंटे के लेक्चर में भी 15 मिनट से ज्यादा सुन नहीं पा रहे हो तो लर्निंग एबिलिटी अभी से खत्म हो गई है, थैंक्स टू आवर रील कल्चर। और अगला पॉइंट है टीम वर्क। अभी तुम लोग यहां पे बैठे हो, तुम में से 10 लोग अगर एक ही टीम में काम करना पड़े ना तो आप नहीं कर पाओगे। आपको प्रॉब्लम आ जाएगी कि सर ये बंदा रेगुलर नहीं है, ये आ नहीं रहा है, हमने पूरा प्रैक्टिकल किया, हमने पूरा प्रोजेक्ट किया, ये सिर्फ आया और इसने नाम दिया है बस। ऐसा होगा, ये ऐसा हो रहा है। आपके पास अगर टीम वर्क नहीं है आपका करियर नीचे आएगा। अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। एलॉन मस्क पता है आपको, वो अकेला काम कर रहा है क्या? मार्क ज़करबर्ग ये कुछ नहीं करते, इन्होंने टीम तैयार करी है और टीम में हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे लोगों में अगर टीम स्पिरिट नहीं है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। और वो आपको यहाँ पे जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें सीखने को मिलेगा और वो करना है आपने। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो वीआईपी होते हैं, वो कॉलेज आते ही नहीं और आइन वक्त पे आएंगे सबमिशन के वक्त, और फिर सर सबमिशन ले लो, सर हमारा माइक्रो प्रोजेक्ट हो गया, सर ये टीम में आपने बोला है सर, लेकिन इसने तो कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं, लेकिन फिर भी उसको मार्क्स मिल रहे हैं। ये होगा एंड द टीम स्पिरिट विल गो अवे। बट यू नीड टू पे अटेंशन दैट even if the person is good for nothing, you need to involve the person, make him or her to work. If the person doesn't work, इंडियन टीम पता है आपको, बैट्समैन ने बैटिंग करनी चाहिए, अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहिए, बाद में रोल आता है बॉलर्स का, उसको सब सपोर्ट करते हैं, विकेट कीपर, प्लेयर्स, जो फील्डर्स होते हैं, वो अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है और कैच ड्रॉप हो रहे हैं, मैच नहीं जीत पाएंगे। बॉलर्स अच्छे हैं लेकिन बैट्समैन ने अच्छे से बैटिंग ही नहीं करी, 300 रन बनाते तो वहां पे 100 ही रन बनाए, प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम केस, आपके टीम में जितने भी बंदे हैं सबका रोल डिस्ट्रीब्यूट होता है और सबने अपना 100% जब देंगे तभी काम कंप्लीट होता है। यू नीड टू लर्न दैट टीम स्पिरिट हियर इटसेल्फ। लेकिन हमारे पास बहुत सारे झगड़े चलते हैं, ये मैकेनिकल वाला है, ये कंप्यूटर वाला है, ये मेरे गांव का नहीं है, ये दूसरे गांव का है, ये मराठी है, ये हिंदी है, एंड दीज स्प्लिट्स अफेक्ट योर टीम स्पिरिट। और ये बाद में आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होता है, आपको बहुत सारे सवाल उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अभी सबसे बढ़कर एक चीज है ये, could you read it? You need to be physically and mentally fit.
और हम लोग मेंटली फिट नहीं है, ये मैं अभी 100% बोल सकता हूँ। अभी आप बोलेंगे सर हमें इनडायरेक्टली पागल बोल रहे हो। Almost everyone, those who are sitting over here, they are having some kind of craziness. अगर हम लोग 10 मिनट एक जगह पे नहीं बैठ पा रहे हैं, there is a problem. आधा घंटा मोबाइल को छोड़ के अगर हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, there is a problem. रील स्कोर करते समय 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट कैसे चले जाते हैं हमें पता नहीं है, there is a problem. और ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत नहीं होती किसी को भी। देखो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसी होती है कि अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो कंपनी को लाखों का या करोड़ों का प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत बार बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स में वो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है, ग्लिचेस आता है, तो पूरी सिस्टम खराब हो जाती है। अगर आपका JEE या MHT CET का सॉफ्टवेयर में इशू आ गया तो पूरा एग्जाम कैंसिल करना होता है, पूरा एग्जाम ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया अगर कैंसिल करना है, इट्स अ ह्यूज टास्क। इसलिए इंजीनियर्स का रोल काफी जरूरी है कि आपके पास आप मेंटली एंड फिजिकली फिट होने जरूरी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, 1 mm की जगह आपने 2 mm कर दिया उसका मेजरमेंट, पूरा प्रोडक्शन, पूरे जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगे वो डिफेक्टिव आएंगे। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो लाखों का होता है, करोड़ों का भी हो सकता है। आपकी अगर दोनों किडनी भी बेच दोगे ना तो भी नुकसान नहीं आएगा। इसलिए you need to be mentally fit first of all, and it is not easy. As far as physical fitness is concerned, हम लोग जिम लगा देंगे, डोले शोले बना देंगे, वो दिखेगा। बट जो फिजिकली फिट ऐसे दिख रहा है वो मेंटली फिट है या नहीं, you don't know. I'll tell you a real story that took place, I think 10 days back or 15 days back. एक बंदा है, एक NMIS स्कूल का एक टीचर था, उसके सामने रेलवे के डिब्बे में वो उतर रहे थे मलाड स्टेशन पे। टीचर सामने है, उसके सामने कुछ लेडीज है, उतरने के लिए तैयार है सब, और ये बंदा जो है वो उस टीचर के पीछे है। हर एक बंदा यही करता है कि भाई कुर्ला आ गया है, उतरना है क्या, उतरना है क्या, हम लोग टैप करते हैं। खारगर उतरना है क्या, हम लोग टैप करते हैं, पूछते हैं ना सबको। अगर जो सामने वाला नहीं उतरा तो उसको बोलते भाई पीछे हमें उतरना है, क्योंकि यू गेट हार्डली 3 to 4 seconds टू अलाइव। यस और नो? तो ये बंदे ने उस टीचर को पूछा टैप करके कि उतरना है क्या, और टीचर के मुंह से गलती से ये निकल गया हाँ उतरना है, लेकिन सामने लेडीज है, तुझे दिख नहीं रहा है क्या, तुझे दिख नहीं रहा है क्या। दैट वाज जस्ट अ ट्रिगर। वो बंदे ने उसकी जेब में कुछ था, स्टैब कर दिया, वो टीचर 2 घंटे में मर गया और वो बंदा पकड़ा गया। लाइफ के 14 years चले गए। आप लोग जब किसी सेंसिटिव प्रोजेक्ट पे काम करोगे एज एन इंजीनियर, आप मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और मेंटली स्टेबल होना मतलब क्या, आप पहले 100% सुनना बहुत जरूरी है कि क्या करना है और कैसे करना है। आपने अगर सिर्फ हाँ में हाँ भर दी कि हाँ मुझे पता चला, समझ गया, और आपने गलत काम किया तो प्रॉब्लम होगी। और बहुत बार हम लोग स्ट्रेस होते हैं, घर में प्रॉब्लम होती है, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होती है, फैमिली में कुछ भी इशू होता है, that affects our psychology. That really affects our psychology. And let me tell you, mental health directly affects your physical health. उल्टा नहीं होता है। आप में अंदर जो भी चल रहा है ना वो तुम्हारी बॉडी पे नजर आएगा। और इंजीनियर जो लोग हैं वो अगर फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है तो काम का प्रेशर झेल नहीं पाओगे। कारपोरेट इज अ जंगल। What is it? It's a jungle, and those who are fit physically and mentally, only they can survive and they can thrive. बस वही लोग आगे जाएंगे जो फिजिकली और मेंटली फिट है। तो अभी आप लोग क्या करना है, जिम जाना है क्या हर दिन? चलो सर 2 प्रोटीन के मैं डिब्बे लेकर आया, तो अभी प्रोटीन खाऊंगा सर, फिजिकली फिट करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। 3 काम करने हैं आपको। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये तो मैं पर्सनल काउंसलिंग में भी हर एक बच्चे को बोलता हूँ। नंबर 1, 6 to 7 hours साउंड स्लीप। 6 या 7 घंटे घर में अपने बेड में सोना है, लेक्चर में नहीं। ये पहली बात।
इसके भी रीजन मैं बताऊंगा। दूसरी बात, न्यूट्रिशियस खाना। व्हाट इज इट? न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड खाना। लेकिन वी इंडियंस, एक तो हमें खाना नहीं मिलता, और जो दूसरा जो मिलता है वो बैलेंस डाइट नहीं है। आज भी अगर हम लोगों की फिजिकल टेस्ट करी गई तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारी डेफिशिएंसी देखी जाएगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। You need to be physically fit. There is no second thought to this. I'll tell you why. मैं जो पीएचडी कर रहा हूँ, जो रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 और लोग थे, उन्होंने रिसेंटली सब कंप्लीट करके वो डॉक्टर बन गए, सैलरी उनकी 5-5, 6-6 हजार से बढ़ गई। मैं उन्हीं के साथ हूँ, मैं कर नहीं पाया। रीजन, आई हैव अ नेक पेन प्रॉब्लम। मैं कंप्यूटर पे या मोबाइल पे ज्यादा देर काम नहीं कर सकता। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टू 1 आवर आई नीड टू लाई डाउन, मुझे सोना पड़ता है, और दैट अफेक्ट्स माय वर्क। अगर मैं फिजिकली फिट होता तो आज डॉक्टर होता और सैलरी भी बढ़ जाती। पॉइंट ये है, आपको थ्रू आउट योर लाइफ आप ये नहीं बोल सकते एक बार डिप्लोमा हो गया कि चलो ठीक है अभी पढ़ाई लिखाई बंद। नो, आपको यू नीड टू बी ऑन योर टोज एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ। यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। देयर आर 3 थिंग्स यू नीड टू डू: लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। लर्न न्यू थिंग्स, अनलर्न ओल्ड थिंग्स। जो पुराना है वो भूल जाओ, नहीं तो हम लोग कैरी करते उसे। नो नीड, अरे हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम लोग ऐसे करते। नो, जमाना चला गया। नाउ द Gen Z, Gen Alpha, they have their different techniques and they are coming up with. Even the language is revolving. The revolution in language is also taking place. So, artificial intelligence has given you an opportunity. एक तो वो आपको खा जाएगा, या फिर आप अगर उसके साथ जाओगे तो आप और थ्राइव करोगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने पढ़ा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कि टॉप क्रीम जॉब में आता है हमारे देश में, उनकी जॉब भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण खतरे में आ गई है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, उनकी जॉब भी खतरे में आ गई है। और सबसे बेकार बात बताऊं, हम टीचर्स की भी। कल परसों आई वॉज अटेंडिंग वन मीटिंग एंड वन ऑफ वेरी सीनियर, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन सेड टू दिस: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के जमाने में टीचर्स की क्या आवश्यकता है। डिबेटेबल टॉपिक है, मैं उनको बोल नहीं पाया क्योंकि हिज लेवल इज सुपीरियर टू मी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हकीकत है। दिस ऑल इमेजेस आई हैव क्रिएटेड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जेमिनाई, पता है आपको? You need to go with the technology. You need to invent technology, be with technology, learn technology and unlearn old technology so that you relearn something new. ये तभी होगा, नहीं तो हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे मैंने बोला, 40 साल तक ही अगर आपको काम करने के लिए दे रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपको निकाल देगी बिकॉज यू आर आउटडेटेड। 40 साल तक तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी बॉयज। 40 साल तक तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, सलमान खान की नहीं हुई, इतना सुपरस्टार है फिर भी। तो आपको लर्न, रीलर्न एंड अनलर्न, ये 3 चीजों पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, यस, इंटर्नशिप पता है आपको? इंटर्नशिप is your experiment house. It gives you, it's a career lab and there is something written, you don't marry a career at 20, you date careers. ये आप लोगों के लिए। आज अगर तुम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हाँ मैं एक ही प्रकार का जॉब करूंगा थ्रू आउट द लाइफ, ये पॉसिबल नहीं है। आज आप लोग 10 काम ट्राई कर सकते हो, 10 कंपनीज चेंज कर सकते हो क्योंकि यू आर यंग। मैंने 4 कॉलेजेस चेंज करी, तब जाके एमपीएससी में मैं सेटल हुआ। उसके बाद भी आई एम ट्राइंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि और हायर पोजीशन पे चला जाए। आप लोगों का यही एज है कि आप जल्दी से जल्दी डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करें और जितनी चाहे कंपनी चेंज करो।
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आपका सेटलमेंट का एज नहीं है, याद रखो। लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती है, जो मिला वो मिला। अरे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, चल इन्फोसिस में चल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। अरे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, चल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। ये आपको होगा, ये आपको होगा। और आप लोग एक काम करना है, सब लोग, तुम्हारे कॉलेज में कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है और उनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, वो पहले से तुम लोग तैयार रखो एंड बी एलिजिबल फॉर दैट क्राइटेरिया, ताकि तुम लोगों को पहला ही जो मौका मिले वो सबसे बढ़िया मिले। नहीं तो क्या होगा, आपने इंटर्नशिप में देखा, यहाँ पे चार ट्राई कैसे होते हैं। मैकेनिकल वाले जितने हैं ना, मैं मोस्टली मैकेनिकल को ही पढ़ाता हूँ। उन 19 इयर्स, आउट ऑफ 19 इयर्स मेरे ख्याल से 15 या 16 साल मैंने मैकेनिकल को ही पढ़ाया है, डिग्री एंड डिप्लोमा, राइट। इवन एमबीए कैट की जो तैयारी कर रहे थे लोग पुणे यूनिवर्सिटी में, मैं उनको भी पढ़ाया, तो मोस्टली जो थे मेरे स्टूडेंट वो मैकेनिकल वाले ही थे। और इसलिए मैकेनिकल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल के अनुसार कंप्यूटर आईटी वाले अपने खुद के एग्जाम्पल्स तैयार करेंगे एंड रिलेट करेंगे। सबसे पहली बात, इंटर्नशिप करी एक कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थी, आपका मन नहीं लगा उसमें, एक्सेप्टेड। दूसरी इंटर्नशिप करो, दूसरी इंटर्नशिप थी ऑटोमेशन की, यू लाइक्ड इट, लेकिन फिर भी ऐसा 100% फील नहीं हुआ कि हाँ यही चाहिए। तीसरी इंटर्नशिप करी जिसमें आप रोबोटिक्स पे काम करें, वो एक्सपीरियंस लिया एंड यू फेल्ट लाइक यही करना था। मैंने ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि लिटरेचर में नहीं, मेरा इंटरेस्ट लैंग्वेज में है। तो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, ऑल लाइफ स्किल्स, नाउ आई एम इंटरेस्टेड एंड आई एम एंजॉयिंग। आपको भी इंटर्नशिप को एक ऐसी तरह से इस्तेमाल करना है की आपको ये पता चले की व्हाट एम आय गुड इन। पुष्कळ वेळा आपल्याला असं वाटतं की अरे मला हे आवडतं, नो, अरे 50 फळ आहेत, ते 50 ची 50 जर का तुम्ही टेस्ट केली तर मग त्यातनं तुम्हाला काय आवडते हे समजलं, परंतु लाईफ मध्ये पुष्कळशी फळ आहेत, तुम्ही सर्व टेस्ट केलेलीच नाहीये। पुष्कळ कंपन्या येतील, पुष्कळ प्रकारचं तुम्ही त्यांचं वर्क कल्चर असेल, त्याच्यापैकी तुम्हाला जेव्हा कळेल की दिस इज व्हॉट आय वॉज लुकिंग फॉर, दॅट इज युअर करियर पाथ, that will decide your career path, right? Yes. Do you really know your career option and career path? आता आपल्याला वाटतं की मला सगळं माहिती आहे, मेकॅनिकल करायचंय, मग मला इथे जॉब मिळणार आहे. दॅट इज लिमिटेड. एक्झॅक्टली करिअर पाथ आणि करिअर ऑप्शन कोणते आहेत? करिअर ऑप्शन म्हणजे मी काय करू शकतो, ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर मी पुढे काय काय करू शकतो, ऍज अ कम्प्युटर इंजिनियर मी काय काय करू शकतो, दॅट इज करिअर ऑप्शन. आणि करिअर पाथ मी एकदा का डिसाईड केलं, ओके हे मला करायचंय, देन यू डिसाइड युअर पाथ, देन यू डिसाइड युअर व्हेइकल टू रीच टू. इन नेक्स्ट स्लाइड यू विल रियलाइज. यस, मैकेनिकल वाले तुम लोगों के लिए रेडीमेड एक्सरसाइज है, बाकी लोगों ने ये खुद करना है, अपने टीचर के भरोसे करना है, उनका गाइडेंस लेके करना है. चैट जीपीटी को पूछो, जेमिनाई को पूछो, एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस you can utilize, but you all need to do it today itself. Your principal sir told me that make people aware about what they need to do, and this is what you all need to do. आतापर्यंत जे वॉर्म अप झालं, जे डिस्कशन झालं, त्या सर्वांचा सार इथे आहे. तुम्ही सर्वांनी आज हे करायचंच आहे. मी कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा करतोय किंवा डिग्री करणार आहे, परंतु त्यामध्ये मला ऑप्शन्स काय आहेत पुढे. आता हे मेकॅनिकल साठी मी रेडीमेड करून दिले. फर्स्ट रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन इंजिनियर, हे ऑप्शन्स आहेत. हाय ग्रोथ फ्युचर टेक, इट रिफर्स ओनली फॉर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. ऑफकोर्स बाकीचे पण याच्यामध्ये कल्बिनेशन असतं, तुम्ही इकडून तिकडे स्विच करू शकता. स्पेसिफिकली मी मेकॅनिकल साठी करून दिलंय. याच प्रकारचं तुम्हाला सर्वांना करायचंय. रोबोटिक्स अँड ऑटोमेशन इंजिनियर, इलेक्ट्रिक व्हेकल हा आताचा लेटेस्ट ट्रेंड आहे. आता जे चालू आहे टेक्नॉलॉजी, सर्वांनी लक्ष द्या, हे सगळ्यांनी करायचंच आहे. जी टेक्नॉलॉजी सुरू आहे त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत त्यावर तुम्ही काम करायचंय. पैसा आणि पब्लिसिटी तुम्हाला भरमसाठ मिळणार, कारण चेंजेस व्हायलाच पाहिजे, चांगले चेंजेस व्हायलाच पाहिजे. आता जे व्हेकल्स आहेत इलेक्ट्रिक व्हेकल, त्याच्यामध्ये काय इश्यूज आहेत
आणि ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर, ॲज अन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर मी काय करू शकतो, व्हॉट व्हॅल्यू आय कॅन ॲड. वन्स यू नो दिस यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन. दॅट इज द कोर ऑफ दिस सेशन. पुढचे रिन्युएबल एनर्जी इंजिनियर. पेट्रोल, डिझेल, लाकूड, कोळसा हे सगळं संपणार आहे. हार्डली 40 to 50 years and next you will not get petrol, you will not get diesel. मग ऑप्शन काय आहे? रिन्युएबल एनर्जी, सोलार, टायडल, हायड्रो, हायड्रोजन, सीएनजी, इलेक्ट्रिक. हे सर्व तुम्हाला करावंच लागणार आहे. तुम्ही कम्प्युटर इंजिनियर असा, मेकॅनिकल असा. इफ यू रिअली वॉन्ट टू सर्वाइव्ह, द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट हॅव दीज ट्रॅडिशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी. तुम्हाला मेकॅनिकल वाले किंवा ईव्हीएस मध्ये हे सांगितलेलं असेल. आणि दिस इज समथिंग स्केरी, परंतु इथे तुमच्या करिअरचा खूप जास्त स्कोप आहे. मोस्टली मेकॅनिकल वाले, इलेक्ट्रिक वाले लक्ष द्या, हे तुम्हाला करायचंच आहे रिन्युएबल एनर्जी मध्ये आणि ह्यामध्ये खूप पैसा आहे, जबरदस्त पैसा आहे. जर तुमचं बिझनेस मॉडेल ह्याच्याशी संबंधित असणार आहे आफ्टर डिप्लोमा अँड डिग्री, आय गॅरंटी यू टुडे इटसेल्फ दॅट यू विल अर्न इन लॅक्स. दॅट इज फॉर शुअर. Even if your job is related to renewable energy, additive manufacturing and digital twin specialist. आता डिजिटल ट्विन स्पेशलिस्ट काय माहिती का, ते 3D मॉडेलचे तुम्ही प्रतिकृती तयार करता. एक्झॅक्टली कसं असणार आहे? व्हर्च्युअली. म्हणजे काय, एखादी गोष्ट तयार करून नंतर तिची टेस्ट करण्यापेक्षा ती व्हर्च्युअली टेस्ट करायची आणि तिचे प्रॉब्लेम शोधून काढायचे. प्रॉब्लेम दिसला की सोल्युशन लावायचं. आणि व्हेन इट इज क्रिएटेड इट इज फुल प्रूफ. यामध्ये पण तुम्ही जाऊ शकता. मेकॅनिकल वाले मोस्टली, ऑफकोर्स इट इज अवेलेबल टू ऑल. नेक्स्ट, येस, मेकॅनिकल साठी हा अभ्यास रेडीमेड आहे. बाकीच्यांनी हे तयार करायचं आपल्यासाठी, तरच या लेक्चरचं काहीतरी आज होईल की माझा करिअर पाथ मला तयार करायचाच आहे आणि तो असाच होणार आहे आणि तो आजच करायचा आहे तुम्हाला. दिस इज समथिंग फ्रेश. तुमच्यापैकी तुम्ही किती पर्सेंट माझं ऐकलंय ते मला माहिती नाही, बट अनलेस अँड अंटिल यू कम्प्लीट दिस, टुडे वी वेस्टेड 2 hours ऑफ ईच अदर. नंबर 1, एरोस्पेस अँड डिफेन्स. मेकॅनिकल वालेच नाही, सगळेच जाऊ शकतात याच्यामध्ये. नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिव्ह इंजिनिअरिंग. ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे ते मी तुम्हाला दिले. काही टेक्निकल गोष्टी मला माहिती नाही. तुमचे मेकॅनिकलचे टीचर्स, सिव्हिलचे टीचर्स आहेत, यू कॅन गेट कनेक्टेड टू देम अँड यू गेट मोर इनपुट्स. The next one is manufacturing and production. Manufacturing आणि प्रोडक्शन मध्ये सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, whatever you manufacture, if it is sustainable, government will help you out. If it is environment friendly, government will help you out. There are so many schemes. Whatever you produce, whatever your production is there, if it is not affecting environment, if it is sustainable, you get tremendous subsidy because government is pro for it. Any issue? Last boys? I can understand. लेकिन unless and until I complete this, I am not going to leave you. कारण मला समाधान वाटणार नाही की 2 तास तुमचे घेतल्यानंतर तुम्हाला काहीही कॉन्क्रीट मिळालेलं नाही. प्रत्येकाने हे करायचंच आहे आज. इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल. ह्याच्याशिवाय घरी आज जायचं नाही. तुम्हाला काय करायचंय, कोणते ऑप्शन्स आहेत माझ्याकडे आफ्टर डिप्लोमा अँड डिग्री, हे सगळे ऑप्शन्स तुमच्या समोर आहेत. पुढचं आहे पॉवर अँड एनर्जी. जेवढी युद्ध चाललेत ना आता बलाढ्य देशाची आणि खूप कमजोर देशाची, त्याच्या पाठी पॉवर आणि एनर्जी आहे. द नेक्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर. ह्या कमी आहे, जबरदस्त कॉम्पिटिशन आहे, परंतु त्या पर्टिक्युलरली इंजिनिअरिंग साठी आहे आणि त्यामध्ये UPSC पासून सर्व ONGC, IOCL, GAIL, SAIL हे सर्वच्या सर्व गेट एक्झाम थ्रू तुम्हाला प्लेसमेंट भेटणार आहे. गेट एक्झाम काय असते, कोणती एलिजिबिलिटी असते, त्याचा स्कोर आल्यानंतर आपल्याला कुठे कुठे स्कोप मिळेल हे सगळं शोधून ठेवायचं आहे. आणि जेव्हा ChatGPT तुमच्याकडे आहे, तुम्हाला फक्त एक क्लिक करायचं आहे, एक प्रॉम्प्ट द्यायचा आहे बस, आणि ते करायचंच आहे. ब्लॅक अँड व्हाईट तयार करायचं स्वतःसाठी. नेक्स्ट, प्रत्येकाने लक्षात घ्या, माझ्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा कम्प्युटर इंजिनिअरिंग मध्ये कुठले कुठले कोर जायंट्स आहेत, मोठ्या कंपन्या आहेत, त्याची लिस्ट तयार करायची. तुम्हाला माहिती नसेल, ChatGPT ला विचारा, तुमच्या TPO ना विचारा. पण त्या सर्व मोठ्या कंपन्या ज्या मल्टीनॅशनल आहेत त्या तुम्हाला बक्कळ पगार देणार आहेत. फक्त आपल्याला एवढं लक्षात घ्यायचंय की ह्याच्यासाठी पात्रता काय आहे, इंटरव्ह्यू कसा होतो.
टेक्निकल जी ऍप्टिट्यूड टेस्ट होते तिची लेवल काय असते, इंटरव्ह्यू मध्ये काय प्रश्न विचारले जातात, ग्रुप डिस्कशन होतं का, असल्या पूर्ण कंपनी तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि प्रत्येक कंपनीचा एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया माहिती असणं गरजेचं आहे आणि अकॉर्डिंगली यू शुड प्रिपेअर युअर सेल्फ, तरच आपला करिअर पाथ तयार होणार आहे, अदरवाईज नाही. नेक्स्ट, आता की स्किल्स आहे, हे मी मेकॅनिकल साठी तयार केले बट ऍप्लिकेबल टू ऑल. पहले जितने पण मैकेनिकल वाले लोग यहाँ पे है ना, जरा ध्यान दो, कैड आपको आना जरूरी है. अभी आपके सिलेबस में है या नहीं डोंट नो, अगर नहीं है एक्स्ट्रा तुम लोग क्लासेस लगाओ एंड गेट इट सर्टिफाइड. सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, रणछोड़दास सर्टिफिकेट एक भी नहीं चाहिए तुम्हारी फाइल में, याद रखो. क्योंकि जब भी आप सर्टिफिकेशन कोर्स दिखाते हो आपको पहला सवाल पूछा जाता है व्हाट हैव यू लर्न इन इट. और अगर आपने सिर्फ नाम के लिए सर्टिफिकेट लिया है, यू आर फायर्ड बिफोर यू आर हायर्ड. मार्क माय वर्ड्स, यू आर फायर्ड बिफोर यू आर हायर्ड. जॉब मिलने से पहले ही तुम्हें निकाल देंगे वहां से. तो आपको ये सर्टिफिकेशन मैटलैब से लेके पाइथन और जितने भी है डेटा ड्रिवन इंजीनियरिंग आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दिस होल वर्ल्ड इज रन ऑन डेटा. पुढचं आहे इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज. आता फक्त मेकॅनिकलच असणं गरजेचं नाहीये, सगळ्यांना सगळं यायला पाहिजे किंवा थोडं थोडं सगळं तरी यायला पाहिजे आणि कोरचं तर वेळ असायलाच पाहिजे. मग त्यासाठी तुम्हाला मेकॅट्रॉनिक्स माहिती पाहिजे, तुम्हाला मशीन लर्निंग माहिती पाहिजे आणि सर्वात महत्त्वाचं आपल्या क्षेत्रामध्ये मेकॅनिकल मध्ये असो, कम्प्युटर मध्ये असो, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा काय रोल आहे ते आपल्याला कसं करता येणार आहे ते तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपण सर्व्हाइव्ह करणं खूप कठीण आहे. कॉर्पोरेटचा एकच लेसन आहे, परफॉर्म और पेरिश. या तो काम करो नहीं तो घर जाओ. येस, हा नेटवर्किंग आहे. ह्याच्यानंतर मी आटोपते घेणार आहे, सो यू कॅन रिलॅक्स. नेटवर्किंग, कनेक्शन्स, ओळखी, लोकांशी संवाद, याच्याने पण तुम्हाला चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकतात. आता प्लेसमेंट इथे 100% होणारच आहे हे याची गॅरंटी नाही. मग तुम्ही डिप्लोमा करून गेला, डिग्री करून गेला, तुम्हाला प्लेसमेंट तर पाहिजेच. तुम्हाला कोण सांगणार आहे? प्रत्येक गोष्ट पेपरला नाही आहे, प्रत्येक गोष्ट वेबसाईटला नाही आहे, प्रत्येक गोष्ट लिंक्डइनला नाही आहे. तुम्हाला ती कनेक्शन्स तयार करावी लागतील. फॉर्मल, इनफॉर्मल कनेक्शन, नेटवर्क. आणि त्या नेटवर्क मध्ये पहिल्यांदा सर्वात जवळची व्यक्ती असेल टीचर्स. कोण आहे सगळ्यात जवळचे तुमच्या? टीचर्स. पण आपण बोलतो का टीचर सोबत? आपण पडून जातो. सर दिसले, अरे सर लेक्चर घ्यायला येत आहे, दुसऱ्या खिडकीतनं बाहेर. डोंट डू दॅट. I'll tell you a story. When I completed my graduation, मी जेव्हा ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं त्याच वेळेस त्याच कॉलेजमध्ये असलेले 3 प्रोफेसर्स त्या सर्वांनी मिळून एक इंग्लिश मीडियमची स्कूल सुरू केली होती आमच्या गावामध्ये. आणि माझं इंग्रजी इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा थोडं बरं होतं, म्हणून त्यांनी मला ग्रॅज्युएशनचा रिझल्ट लागल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी कॉलेजला बोलवलं आणि सांगितलं आपल्याकडे आता लोअर केजी सिनियर केजीचं स्कूल आपण स्टार्ट करतोय, इंग्लिश मीडियम आहे आणि इंग्लिश मीडियमचं वारं त्यावेळेस आलेलं, तुला तिथे ॲज अ टीचर म्हणून काम करायचंय, आम्ही तुला पगारही देऊ आणि तुझं पुढचं शिक्षणही करून घेऊ, म्हणजे बीएड वगैरे एमएड वगैरे. द पर्सन हू हॅज स्केर्सिटी ऑफ फंड्स, माझ्यासाठी ती खूप मोठी ऑपॉर्च्युनिटी होती. पण काही गोष्टी नशिबावर पण असतात. माझे एक मेंटॉर आहे डॉक्टर एन जे पाटील. ही इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट नाउ. ही आनंदाची बातमी मी घरी शेअर नाही केली, बिकॉज माय पॅरेंट्स दे डिडंट नो एनिथिंग. मी त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना सांगितलं की सर इंग्लिश मीडियम सुरू होणार आहे, आपल्याच गावात होणार आहे आणि मला लोअर केजी सिनियर केजी साठी ॲज अ टीचर हे लोक बोलवत आहेत आणि पगारही देणार आहेत, काय करू? टीचरने एकच गोष्ट सांगितली, विच इज व्हेरी ॲप्लिकेबल टू यू टू, की एखादं जे रोपटं असतं ना त्याचा वाढण्याचा आणि मोठं झाड होण्याचा एक कालावधी असतो. तो कालावधी निघून गेला की त्याला कितीही चांगलं खाद्य आणि कितीही चांगलं पाणी दिलं त्याचं मोठं झाड होत नाही. इथून बाहेर निघायचं, पुण्यात जायचं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं आणि मग काय करायचं तुला ते कर. त्यांचा शब्द मी मागे टाकणं किंवा न मांडणं शक्य नव्हतं. अजूनही ते सुरू आहे. ही सी इन माय टच, रादर आय एम इन हिज टच.
त्यांनी सांगितलं, पुण्याला गेलो, FC कॉलेज, फर्ग्युसन कॉलेज, द टॉप मोस्ट, त्याची इंटरव्ह्यू दिली, रिजेक्ट झालो कारण माझं प्रोनाउन्सिएशन खराब होतं. नंतर एक गोलक कॉलेज आहे, तिथे मी ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं, अँड रेस्ट इज द हिस्ट्री. पॉइंट इज, तुम्हाला नेटवर्क असणं गरजेचं आहे दोन गोष्टीसाठी, गायडन्स आणि ॲडवाइस. काय करायचंय आणि काय करू नये, काय करायचं हे सांगणारे तुम्हाला 17 भेटतील, पण काय करू नये हे सांगण्यासाठी आई वडील आणि टीचर हे 3 रिसोर्सेस खूप जबरदस्त आहे, कारण ते जेन्युइनली वाटतं त्यांना की तुम्ही सक्सेसफुल व्हावं. सो कीप युअर नेटवर्क स्ट्रॉंग. द फर्स्ट पर्सन इज युअर टीचर्स, युअर ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर. पण आपण बघतही नाही ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसरकडे. टीचरांना आपण कधीच विचारत नाही की सर मल्टीनॅशनल कंपनीज कशा असतात, काय असतं. डू दॅट. सेकंड थिंग, सिनियर्स. आता तुमचे जे सिनियर्स आहेत, किती लोकांना त्यांच्यासोबत कॉन्टॅक्ट आहे, हात वर करा की सर सेकंड इयर थर्ड वाले मला ओळखतात, मी त्यांना ओळखतो. बाकी काहीच नाही. आपण आपल्या मित्रासोबत तर वडापाव खायला नेहमीच जाणार आहोत. सिनियर्स सोबत का कनेक्शन ठेवायचे याचं सूत्र सांगतो तुम्हाला. बाय द टाइम यू कम्प्लीट युअर डिप्लोमा, जो व्यक्ती आता थर्ड इयर मध्ये आहे तो बाहेर जाऊन कदाचित कंपनीमध्ये काम करेल किंवा हायर एज्युकेशनला जाईल. लिसन टू मी व्हेरी केअरफुली. हायर एज्युकेशन साठी गेलात, मेट्रो सिटीमध्ये गेलात, अब्रॉड मध्ये गेलाय तुमचा सिनियर, तो तिथून तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतो. तो सिनियर एखाद्या चांगल्या कंपनीमध्ये आहे, तिथे वॅकन्सी आहे, तो तुम्हाला सांगू शकतो की अमुक अमुक ठिकाणी अशी अशी वॅकन्सी आहे, तू ये. कारण ऑफ कॅम्पस जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा तुम्हाला ते स्वतःच करावं लागतं आणि हे सिनियर्स तुम्हाला तेव्हा उपयोगात पडतात. पुढची गोष्ट आहे, लिंक्डइन सारख्या जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत की जिथे तुम्ही फक्त एवढं नाही सांगायचं डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअर, कोणी तुम्हाला विचारणार नाही कोणता प्रोजेक्ट केलाय, कोणती इंटर्नशिप केली आहे, आता एक्झॅक्टली काय करताय, या सर्व गोष्टी तुम्ही ऑनलाईन लिंक्डइन सारख्या प्लॅटफॉर्मवर जर टाकल्या तर तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज येतील. अदरवाईज नाही. तुम्हाला स्वतःची जाहिरात करावीच लागेल, तरच लोकांना कळेल की तुम्ही काय करू शकता. अदरवाईज नोबडी विल कम टू यू बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल इन द क्यू. पुढे. येस, this is the second last slide. Your career is a book. You are the author. Bad chapters don't mean a bad book. Bad chapters म्हणजे काय माहिती का? केटी लागणं. खूप चांगली कंपनी आली पण तुम्ही पहिल्याच राऊंड मध्ये रिजेक्ट होणं, हे पॉसिबल आहे, हे होतं. मग याचा अर्थ आपलं संपलंय का करिअर? यू कॅन बाउन्स बॅक, यू कॅन बाउन्स. पण असं नाही की कितीही कंपनी आल्या आणि प्रत्येक वेळेस रिजेक्ट होत आहे आणि काहीच काम नाही करत आहे, स्वतःवर काम नाही करत आहे, तर रिजेक्ट होणारच. सो डोंट बॉदर की समोरच्या व्यक्तीला 10 लाखाचं पॅकेज मिळालं आणि मला फक्त 5 लाखाचं मिळालं. डोंट वरी, नंतर कदाचित तुमची करिअर ग्रोथ एक्स्ट्रा होऊ शकते. चान्सेस आर देअर. द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस डे. रिमेंबर युअर करिअर इज अ जर्नी, इज युनिक टू यू. स्टे क्युरियस, स्टे रेसिलियंट अँड परस्यू व्हॉट ब्रिंग्स यू फुलफिलमेंट. एक लास्ट एक मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आहेत इम्रान प्रताप गढी, त्यांची एक गझल आहे, त्याच्या 4 ओळी सांगतो आणि मी संपवतो. इफ यू कॅन रिलेट अँड अंडरस्टँड प्लीज क्लॅप फॉर दॅट बिकॉज दॅट इज नॉट माइन बट व्हॉट ही डेड दॅट इज ॲब्सोल्युटली फिनॉमिनल. ही सेज, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है. तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी. तुम्हाला फक्त डेट्स बदलायच्या असतील तर टाइमपास करा. जर तुम्हाला खरंच खेळायचं असेल
तर मी सांगितल्याप्रमाणे आजच करिअर मॅप तयार करा आणि वर्कआउट करा. तुमच्या प्राचार्यांनी, तुमच्या मॅडमनी कोऑर्डिनेट केलं, मला संधी दिली, तुम्ही चांगल्या प्रकारे ऐकलं, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. असाच रॅपो आपण लाईफ टाईम ठेवूया. थँक्यू सो मच.